Hello students, I am going to discuss about the pinochle, pinacolone rearrangement. This is the first part of the rearrangement, particularly for MSc and who those preparing for NET and JEE examinations. This pinochle, it is the reactant and the pinacolone is the product. So name of the topic is reactant product rearrangement. Pinochle, it is 1,2-dihydroxy compound, and pinochle, it is the product obtained after this rearrangement, which is mainly the ketone. Sometimes aldehyde is also obtained. It depends on the starting substrate. So I start with definition of this rearrangement. The conversion of 1,2-diol in presence of dilute H2SO4 into a ketone is known as pinacolone rearrangement. This rearrangement involves the 1,2-dihydroxy compound of following types. This is 1-dihydroxy compound, 1,2-diol, in which all the substituents are the same, which are the methyl group. In this diol, there are three substituents, namely methyl group and one is the phenyl. In this case, one methyl group has been replaced by cyclopropyl group and other is replaced by phenyl group. So this 1,2-diol belongs to open chain system. But in cyclic system, when we take the example of this type of compound, 1,2-dihydroxy compound, in which two rings are present, when this type of compound undergoes pinacolone rearrangement, undergoes ring expansion. Out of these two rings, one ring undergoes expansion, and product is the spiroketone. In this case, in this type of 1,2-dihydroxy compound, one ring gets contracted while other remains the same. The product is again the spiro compound. In this case, this is cyclopentenyl 1,2-dihydroxy compound. When this type of diol undergoes pinacolone rearrangement in presence of dilute H2SO4, this ring undergoes expansion. Similarly, this is the again 1,2-diol. When this type of compound undergoes this rearrangement, the ring gets contracted. So these are the examples for the pinacolone rearrangement. This pinochle, 1,2-dihydroxy compound or 1,2-diols are these type of compounds. Now, you should know the key points of this rearrangement. This rearrangement undergoes carbocation. This rearrangement undergoes via the carbocation intermediate. Initially formed carbocation intermediate undergoes rearrangement to form a more stable carbocation intermediate. So I will give example with mechanism. So before writing the mechanism, it is important to understand what are the key points of this mechanism of this rearrangement reaction. The key points. Number one, it is acid catalyzed rearrangement reaction. Acid catalyzed
rearrangement reaction. The acid is dilute H2SO4. Second key point is rearrangement passes through a carbocation intermediate. Thirdly, this carbocation undergoes rearrangement to produce a more stable carbocation. So initially formed carbocation undergoes rearrangement to produce a more stable carbocation. अब ये जो rearrangement carbocation का होता है किस कारण होता है? Fourth point, it happens due to migration of groups from neighboring carbon or vicinal carbon to positively charged carbon center. And lastly, product which is obtained has rearranged carbon skeleton. And lastly, rate determining step RDS. Rate determining step is proportional to formation of carbocation. तो ये की पॉइंट्स है rearrangement रिएक्शन का. नेक्स्ट पॉइंट है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द सब्स्टिट्यूट, which is very important. So next point is migratory aptitude of the group. पहले फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद अल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री पहले करेगा, 2 डिग्री बाद में करेगा, इसके बाद C2H5 होगा और लास्ट में ये दिस इज अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री 2 डिग्री लास्टली 1 डिग्री में दिस इज 1 डिग्री में मिथाइल भी आता है, इथाइल भी आता है. तो C2H5 माइग्रेट फर्स्ट बिफोर CH3. ये माइग्रेटरी ऑर्डर है. अगर फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल है
in case of substituted phenyl benzene the order is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से तो लगा हुआ है। इसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड वैसे टॉल्विन है एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये बेसिस है इसका। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमने पहले मेंशन किया हुआ है, एग्जाम्पल 1। अब इससे हम शुरू करते हैं। 1,2 डाइऑल है, CH3 सभी सब्सिक्वेंट मेथाइल है। ये आपका प्रोटोनेशन होता है, इसमें दोनों OH ग्रुप आइडेंटिकल है, किसी OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद मान लिया इसका प्रोटोनेशन हो गया तो हम SO2 प्लस कर देंगे यहाँ पर। ऐसे लिख सकते हैं, या आपको और इजी करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ये ऐसे रहेगा, CH3 OH होगा। अब इसको तो ये पहला स्टार्टिंग है, इसको अगर हम 2 मेंशन करें तो इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, -H2O होगा। ये यहाँ से निकलेगा और बाहर चला जाएगा, बाहर निकल गया। यहाँ पर CH3 है, पार्टी चार्ज हो गया, CH3 है और यहाँ पर OH। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप की वजह से। एक कार्बोकेटाइन है स्टेबिलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 2CH3 ग्रुप। ये CH3 ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन से ये इसको स्टेबलाइज करते हैं। अब अगला स्टेप रीअरेंजमेंट स्टेप, रीअरेंजेंट। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है। उस रीअरेंजमेंट में ये ग्रुप जो है, यहाँ का ग्रुप इस पर माइग्रेट करेगा, क्योंकि ग्रुप माइग्रेटिंग दोनों CH3 है, तो इस CH3 में जो इसके एंटी पोजीशन पर रखता है यही माइग्रेट करता है। ये यहाँ पर चलाएगा, माइग्रेट करेगा, 1 के बीच में माइग्रेट करेगा, तो बनेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है। ये भी कार्बोकेटाइन फर्स्ट है, ये भी कार्बोकेटाइन सेकेंड है। अगर हम इसको कार्बोकेटाइन फर्स्ट कर देते हैं तो ये कार्बोकेटाइन सेकेंड हो जाएगा। ये जो सेकेंड कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है, और दूसरा यहाँ से यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। इसके द्वारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, तो इसके बीच में CO आ जाएगा, ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब ऐसा होगा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के फार्म में बाहर चला जाएगा, H+ के फार्म में बाहर चला जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से
निकल जाएगा बाहर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 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 CO CH ये प्लस हो जाएगा ऐसा। ये दिस इज योर प्रोडक्ट आपका कीटोन है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर अगर आप विचार करें, ये आपका रिएक्टेंट है। तो अब इसके देखिए, इसका कार्बन स्केलेटन देखिए, यह कार्बन स्केलेटन में कोई क्वाटर्नरी कार्बन एटम नहीं है, इसमें कोई कार्बन क्वाटर्नरी नहीं है। ये टर्शियरी कार्बन है, ये भी टर्शियरी कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन इसके अंदर है। लेकिन जब प्रोडक्ट देखेंगे तो इसके अंदर एक क्वाटर्नरी कार्बन जनरेट हुआ है, ये क्वाटर्नरी कार्बन है। तो कह सकते हैं कि जो इसका कार्बन स्केलेटन है वह कार्बन स्केलेटन प्रोडक्ट में मेंटेन्ड नहीं है, अर्थात रीअरेंज कार्बो स्केलेटन का प्रोडक्ट बनता है। दूसरा ये बताना है कि यहाँ यह 1,2-डाइऑल है, रिएक्टेंट क्या है 1,2-डाइऑल है, और प्रोडक्ट क्या बना, कीटोन बना। इसके प्रेजेंस में बना, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बना। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स हमने आपको लिखाया है, नोट कराया है, वो सब सूट कर रहा है। तो यह पहला कार्बोकेटाइन बना। यह रीअरेंज क्यों करता है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, ग्रुप के माइग्रेशन के कारण सेकेंड कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन लॉस होता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2 हम इसको कर लें, एक अगर हमें चेंज कर दें इसके अंदर, तो चेंज देखिए क्या होगा। यदि हम यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा दें, एक बेंजीन रिंग लगा दें ऐसे, ऐसा बेंजीन रिंग है, बाकी स्केलेटन वही है। आपका एग्जाम्पल दूसरा हो जाएगा। ये हमने फिनाइल रिंग चेंज कर दिया। अब प्रोटोनेशन करवाने के लिए सोचना पड़ेगा कि इस OH का प्रोटोनेशन होगा कि इस OH का प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि दोनों OH डिफरेंट है, सेम OH दोनों नहीं है। कभी देखना होगा कि उस OH का प्रोटोनेशन होगा जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। अगर हम इसको प्रोटोनेट करेंगे तो यह कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर इसको प्रोटोनेट करते हैं तब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। वो हम बता के आपको समझाते हैं। प्रोटोनेशन इसका नहीं होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। तो हम इसको अगर O2 कर दें, H2 कर दें यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोटोनेट नहीं करेगा, ये प्रोटोनेट करेगा। जब ये प्रोटोनेट करेगा तो अब ये यहाँ से ये हम निकलेगा, बाहर जाएगा, और यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है लगा देंगे। बेंजीन रिंग इसे, ये बेंजीन रिंग है, इससे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर पार्टिकल चार्ज हो जाएगा, वाटर निकल गया है, ये पार्टिकल चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर OH रहेगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पार्टिकल होता तो उसकी कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती, और यहाँ पार्टिकल आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि यह इसके पाई बॉन्ड के अल्फा पोजीशन, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पोजीशन में पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस में भाग लेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यह प्रेफर किया जाएगा। अब इसको यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए। अब कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करना है, तो एक कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ बेंजीन बनाना पड़ेगा। इसका बेंजीन बना, पार्टिकल चार्ज हो गया। ये सेकेंड, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल है। अब इसको हम
ग्रुप का माइग्रेशन करना पड़ेगा। माइग्रेशन वो यहाँ से वाटर निकला, पार्टी बना, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ का ग्रुप यहाँ रीअरेंज करके जाएगा। तो अब यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3 माइग्रेट करेगा यहाँ से। और जब CH3 माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर ये पार्टी हो जाएगा, दूसरा बनेगा। ये इसकी तुलना में ये ऐसे माइग्रेटिंग इसका एप्टीट्यूड होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी कार्बोकेटाइन बनाना हो तो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वो कार्बोकेटाइन प्रिफरेबली बनता है जो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर बनने यहाँ का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसे बना दिया गया। लेकिन जब ये यहाँ से माइग्रेट यहाँ करेगा तो ये ऐसा हो गया, यहाँ पार्टी चार्ज आ गया, ये भी रीजनली स्टेबलाइज है। ऐसे ऐसे है। अब ये यहाँ पर जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका स्केलेटन पूरा चेंज हो चुका है। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CO, ये नहीं हो गया, ये आपका CH3 है, यहाँ पर CH3, ये आपका प्रोडक्ट कीटोन बनेगा। इसमें भी कार्बन स्केलेटन रीअरेंज्ड है। यह जो कार्बन स्केलेटन है उससे डिफरेंट कार्बन स्केलेटन इसका बना हुआ है। ठीक उसी पैटर्न पर एग्जाम्पल हम 3 देंगे आपको। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में आपका ये आपका C है, CH3 है, OH है, यहाँ पर C है, OH, यहाँ पर C6H5 है, यहाँ पर CH3। अब इस पे प्रोटोनेशन कराना है। अभी देखना है कि इससे 2 प्रकार के बनेंगे। जो अगर इसको प्रोटोनेट करते हैं तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, इसको प्रोटोनेट करके हटाते हैं वाटर को तो यहाँ बनेगा। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो इसको प्रोटोनेट ऐसे करेंगे, CH3 C6H5 CH3 OH ऐसा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग से जो कार्बन है और पार्टी चार्ज इसका है तो वह फिनाइल रिंग से जुड़े हुए कार्बन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। अब इसको लॉस ऑफ वाटर करिए, यहाँ से कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। CH3 पार्टी चार्ज हो गया, ये C6 फिनाइल हो गया, CH3 हो गया, ये OH हो गया। अब इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, रीअरेंज करेगा, रीअरेंजेड फिनाइल ग्रुप ये अरेंज करेगा, यहाँ से आएगा इसके पास। C6H5 हो जाएगा, C पॉजिटिव हो जाएगा, OH और CH3 हो जाएगा। यहाँ से रियोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसके बीच में। तो आप चाहें तो रियोनेट शो करके भी बना सकते हैं ऐसे। एक ऐसा भी दिखा सकते हैं, CH3 C6H5 और यहाँ पर ये हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH3 होगा। यहाँ से प्रोटॉन निकाल दीजिए, माइनस से प्लस कर दीजिए, ये यहाँ से निकल जाएगा।
CH3 C6H5 CO CH3 प्लस प्रोटॉन, ये आपका प्रोडक्ट कीटोन। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोकेटाइन किससे बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा। अगर CH3 है और C6H5 है तो ये माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट नहीं करेगा, और लिखा दिया गया। अब एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 इंडिक एग्जाम्पल्स होता क्या है कि माइग्रेशन ऑफ सब्सिक्वेंट होता है, माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप होता है। तो इंडिक एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट करना चाहिए। इंडिक एग्जाम्पल्स there is migration of group, migration of group। अब मैं जो एग्जाम्पल आपको दूंगा उसमें शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगा। अगर एग्जाम्पल साइक्लिक सिस्टम है, बट इन साइक्लिक सिस्टम, बट इन साइक्लिक 1,2-diol there is shifting of sigma bond in rearrangement step, For example, पहले जो 3 एग्जाम्पल्स हमने जो शो किया है उसमें ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। अब जो एग्जाम्पल शो करने जा रहे हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगी। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये आपका साइक्लोपेंटाइल है, 2 साइक्लोपेंटेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें OH इधर है और OH इधर है। एग्जाम्पल 4 कर सकते हैं इसको, एग्जाम्पल 4 कर लीजिए इसको। अब बेसिक कैटलिस्ट चाहिए, ये प्लस होगा, दोनों OH आइडेंटिकल हैं, किसी का प्रोटोनेशन कर सकते हैं। मान लिया इसका हमने प्रोटोनेशन कर दिया, यह चेंज कर दिया, पॉजिटिव हो गया, इसको रहने दिया, एक प्रोटोनेट कर दिया। अब इसमें लॉस ऑफ H2 होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये आपका OH ऐसा। अब इसमें बॉन्ड शिफ्ट करता है, और कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करेगा? जो इसके एंटी होता है। ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ ऐसे, और ये पॉजिटिव सेंटर का एंटी जो ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर शिफ्ट करता है। तो जो बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये रिंग के अंदर आ जाएगा, स्पाइरो कंपाउंड बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ऐसा होने से यहाँ लिखते हैं ये रिंग 6 मेंबर हो जाएगी। और यहाँ पर हम ऐसे आ जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, 2 लोन पेयर है यहाँ पर। अब होगा क्या, यहाँ पर ये ऐसा आएगा, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ शिफ्ट करता है, रिजोनेंस बनाता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, O हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा,
ये आपका स्पाइरो कंपाउंड बनता है। फिर यहाँ पर लॉस ऑफ ये प्लस होगा, यहाँ से निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसे स्पाइरल कंपाउंड है, स्पाइरोकीटोन है, स्पाइरोकीटोन बन गया, इसको स्पाइरल कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेप है रीअरेंजमेंट की स्टेप है, रीअरेंजेज बॉन्ड शिफ्ट करता है बाय बॉन्ड शिफ्ट, रीअरेंजेज बाय बॉन्ड शिफ्टिंग, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है, ये 6 मेंबर हो जाता है, बाकी चार्ज जनरेट होता है, फिर जेनेटिक स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटॉन निकलता है, प्रोटीन बनता है। इस तरह से ये कंपाउंड बनता है इस तरह का। इसी तरह का ये आइसोलेटेड रिंग सिस्टम है। यदि हम फ्यूज रिंग सिस्टम ले आए, फ्यूज रिंग सिस्टम में 1,2 डाइज़ाइल हो, तब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल और ऐड करता हूँ इसी टाइम पर। एग्जाम्पल 5 करें तो यहाँ पर 5 में यहाँ का पर हाइड्रोनेस्लिन भी कर सकते हैं इसको, 9-10 पोजिशन पर OH ऐसा, ये भी 1,2 डाइज़ाइल है। इसमें हम प्रोटोनेट करें, किसी को प्रोटोनेट कर सकते हैं, या ऐसे प्रोटोनेट करें या ऐसे करें, दोनों सेम है। हमने ऊपर वाले को प्रोटोनेट कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज में मिस करते हैं, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे रिंग एक्सपेंशन, ध्यान रखिएगा, जैसे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर OH है, ये पार्टी चार्ज है, एक स्टेप में बना ये हो गया, नॉन पेयर हो गया, ये पार्टी चार्ज हो गया, वाटर यहाँ से H2O करके निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये पार्टी सेंटर हो गया, यहाँ पर और यहाँ रीअरेंज करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा। रीअरेंज बॉन्ड शिफ्ट, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड जो यहाँ का है, ये बॉन्ड यहाँ जाके यहाँ लगेगा, तो ये अब 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, तो होगा क्या कि ये ऐसा हो जाएगा, 6 मेंबर मेंटेन रहेगा, यहाँ पर ऐसा होगा, और यहाँ पर जो OH होगा ऐसा, यहाँ पार्टी चार्ज आ जाएगा, दूसरा कार्बोकेटाइन सेंटर जनरेट होगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, ये ऐसे है। अब ये यहाँ पर चला जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और इसको हम ऐसे कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ये कीटोन बन जाएगा। इसमें यह रिंग कॉन्टेक्ट कर रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रिंग हो रहा है, एक कीटोन तो प्रोडक्ट बन गया। इसका कार्बन स्केलेटन देखिए, रिएक्टेंट का कार्बन स्केलेटन ऐसा, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का कार्बन स्केलेटन। रिएक्टेंट आपका बाइसाइक्लिक कंपाउंड है और जो प्रोडक्ट है आपका स्पाइरो कंपाउंड है, तो दिस इज स्पाइरो कंपाउंड। कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया, यहाँ पर शिफ्ट होता है, एक रिंग कॉन्टेक्ट करके छोटी हो गई। एक एग्जाम्पल 3 है और लास्ट एग्जाम्पल जब वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा, एग्जाम्पल 6।
हम साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल लेंगे। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल इसके दोनों OH जो हैं इक्विटोरियल पोजीशन पर है और यहाँ पर CH3 है, एक्सियल है, ये आपका CH3 है। दोनों OH आपका एक्सियल है, इसलिए दोनों OH सेम है। अब इसका प्रोटोनेशन होगा, यह प्लस करेंगे प्रोटोनेशन इसी कैटलिस्ट से, चाहे इस इक्वेटोरियल का करें प्रोटोनेशन या इस OH का करें, दोनों सेम होगा। मान लिया हमने इसका कर दिया, सब होगा क्या, इसका OH किया तो O+2 बना दिया, ये पार्टी कर दिया, ऐसा कर दिया, ये CH3 हो गया, ये CH3 है, ये OH हो गया। अब लॉस ऑफ वाटर होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, -H2 कर दिया, यहाँ से निकल गया, इस सेंटर पैदा हो गया, ये आपका CH3 है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इक्वेटोरियल पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका CH3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये इसका जो अपोजिट ये बॉन्ड ये शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर कनेक्ट, अब यहाँ से उठ करके यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर जब कनेक्ट होगा तो होगा क्या, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ जब आता है तो इसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है, ऐसा हो जाता है, यह आपका CH3 हो जाता है और वहाँ पर इसी से कनेक्टेड है, जो ये कूद जाता है तो इसी से हो जाता है, ये दिस इज COH, CH3 हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यह एक कार्बोकेटाइन था, दूसरा कार्बोकेटाइन ये बन गया, बॉन्ड शिफ्ट करके डीएनए कर दिया, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग। अब क्या होगा कि इसमें अब वही जेनेटिक स्ट्रक्चर इसमें काम करेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा और यह यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। CH3 यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने 5 एग्जाम्पल्स की मदद से 6 एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 डालूंगा, जिसमें फिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का एक्सटेंशन किया गया है, जिसको हम सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। उसको हम डिटेल अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।